أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو، کہ جو شخص اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ اس سے یہ یہاں پر ثابت ہوا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی مدت 3 مہینے 10 دن ہے، اور جن کے خاوند انتقال کر جاتے ہیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو زیب زینت اختیار کر سکتی ہیں، یعنی کہ اپنا میک اپ یا سنگار وغیرہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے ولیوں کی اجازت سے، ان کی مشاورت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں یا جو عدت میں بیٹھی ہیں، اگر ان سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اشارتاً ہم ان سے کہہ سکتے ہیں یا اپنا پیغام بھجوا سکتے ہیں ان عورتوں کے پاس کہ ہمیں آپ سے نکاح کرنا ہے، لیکن ہم ان سے پوشیدہ میں اکیلے میں وعدہ نہیں کر سکتے، پکا وعدہ کہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اور جیسا اس نے کہا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے۔ عدت ختم ہونے کے بعد ہی یہ نکاح ہوگا، عدت کے دوران یہ نکاح کرنا جائز نہیں۔ جو عورت طلاق یافتہ ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طلاق یافتہ عورت کو 2 طلاقیں ہیں یا 3 طلاقیں ہیں۔ اگر 2 طلاقیں ہیں تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا خاوند اس کو فارغ نہ کر دے، اور جس کا خاوند مر چکا ہے تو وہ اپنی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے وہ ختم کرنے کے بعد ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا نکاح ہوا کہ جس نے بیوی کو اپنی چھوا نہیں تو اگر اس کو طلاق ہو گئی تو اس کے اوپر عدت نہیں لازم ہوگی۔ ہاں اور طلاق دیتے وقت خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرے، جتنے کے دستور کے مطابق وہ اپنی آمدنی میں سے جتنا ہو سکے اس کو خرچہ دے کر اسے طلاق دے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو، اور یہ بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جو طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ پورا حق میں نہیں دے سکتا تو کم سے کم آدھا دے، اور اگر اس کی بیوی اس کو حق میں اس کو معاف کر دیتی ہے تو وہ اچھی بات ہے، الگ بات ہے، اور لیکن اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا حق میں جو طے ہوا ہے وہ اسے ضرور دے۔
हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अल्लाह ताला ने कहा है नमाज की हिफाजत करो। नमाज की हिफाजत किस तरह से होगी कि हमने नमाज पढ़ने के बाद गुनाह कबीरा से बचना है, और अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़, नफ़रत, कीना नहीं रखना चाहिए। दिमाग में किसी मुसलमान भाई को साजिश करने की, नुकसान पहुंचाने की साजिशें, चालबाजी नहीं चलनी चाहिए। अपने हाथ से, अपनी ज़बान से अपने मुसलमान भाई को अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी तरह से नेकियां करके हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की यहाँ से उलमा कराम ने जो है हदीसों के ज़रिए से और अपने इज्तिहाद के ज़रिए से यह बात अंदाज़ा लगाया कि दरमियान वाली जो नमाज है वो असर की नमाज है। वो कुछ भी करके, और सिर्फ 4 फ़र्ज़ ही हैं, 4 सुन्नत जो है वो गैर मुक़द्दर हैं। तो ये छोटी सी नमाज है, सबसे कम नमाज छोटी नमाज है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये असर की नमाज नहीं कज़ा हो, इसको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के हुजूर बाअदब खड़े रहा करो, यानी कि जब हम क़याम में खड़े हों तो क़याम में हमें इस तरह से खड़ा होना चाहिए, खुशू और खुज़ू और आजिज़ी के साथ, कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे तो ये मजाल भी नहीं है कि हम अपने रब के सामने खड़े हो सकें। उसी ने हमें ताकत और तौफ़ीक बख्शी है कि हम उसके सामने जो खड़े हों, नमाज जो पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा करम है। और हम जब नमाज पढ़ें तो हमारा ध्यान, हमारी यकसुई पूरी की पूरी नमाज की तरफ होनी चाहिए। उसका तर्जुमा, उसका मफ़हूम हमारे ज़हन में होना चाहिए कि हम ये जो नमाज में जो पढ़ रहे हैं, इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। और बाज़ लोग नमाज की हालत में कभी दाढ़ियों से खेल रहे होते हैं, औरतें अपनी चादरों से खेल रही होती हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब नमाज में खड़े हो गए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके हाथों का इस्तेमाल कम से कम हो। बहुत बिल ज़रूरत, जहाँ वाकई में अशद ज़रूरत हो, वहाँ हाथ का खारिज हो जाती है, तब इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ हमें बिल्कुल अदब के साथ खड़े होना चाहिए, ना हिलना जुलना चाहिए, ना ध्यान कहीं और होना चाहिए, ना हमें अपनी दाढ़ियों से खेलना चाहिए, ना उंगलियां चटकाना चाहिए। ये सब ममनू अमल है, इनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही, हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें खौफ है अल्लाह ताला का, और तुम्हें मालूम है कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, तो तुमने अगर सवारी नहीं है मैसर, तो तुम पैदल चलकर अल्लाह ताला की इबादत गाह पहुँच कर इबादत करो। हाँ, अगर सवारी है तो तुम सवारी पर ही पहुँचो, लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र करो जैसा कि उसने बताया है। और अल्लाह ताला ने हमें वो तालीम दी है जो हम नहीं जानते थे। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। जो शख्स मर जाता है तो मरने से पहले उसको चाहिए कि अपनी बीवी के लिए कुछ इतना अमाउंट वो रख जाए कि वो साल भर तो उसमें से अपना गुजर बसर कर सके, और अपने औलाद को या अपने माँ बाप को कुछ इस तरह की वसीयत करे कि मेरी बीवी को घर से ना निकाला जाए साल भर तक के लिए, या जब तक कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से ना हो जाए तब तक। क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है बीमारी कि बहू को तो अच्छे से रखते तो हैं जब तक कि बेटा ज़िंदा होता है, जैसे बेटे का इंतकाल हुआ तो फ़ौरन घर से बाहर निकाल देते हैं कि भाई चलो अपना बंदोबस्त करो, अपने माँ बाप के घर निकलो। इद्दत का भी वक्त उसको उस घर में अपने नहीं पूरा करने देते, जबकि ये गलत हरकतें, नीच किस्म की हरकतें, गलाजत वाली हरकतें, बहुत ही गंदे किस्म के लोग हैं जो इस तरह से करते हैं कि अगर उनके बेटे का या भाई का इंतकाल हो जाता है तो वो अपने इस घर की बहू को घर से रुखसत करने का कह देते हैं, जबकि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, इसके लिए तुम वसीयत पहले से ही कर दो।
और तलाक वाली बीवियों को जो है, जब तुमने उनको रुखसत करना है अपने घर से, तो कुछ ना कुछ देकर उनको रुखसत करना चाहिए, घर से अच्छा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ये सब परहेजगारों के ऊपर लाजिम करार दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। ये तुम इसको समझने की कोशिश करो कि अल्लाह ताला ये अहकाम हमारे ऊपर जो उतार रहा है, हमें जो ये हुक्म दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसमें तुम सब की ही भलाई है। क्योंकि अगर तुम एक मर्द होकर सोचते हो कि ये मैं अपनी बीवी को इतना प्रॉफिट अल्लाह ताला पहुंचा रहा है, तो ये मैं क्यों इतना प्रॉफिट उसको दूं, तो देखो कि तुम्हारी बहन भी तो कहीं और गई है। अगर तुम ये प्रॉफिट अपनी बीवी के लिए नहीं सोचते, तो तुम अपनी बहन के लिए सोचते हो, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। तुमने वही पसंद करना है जो अपनी बहन के लिए पसंद कर रहे हो, तो तुम अपनी बीवी के लिए भी वही पसंद करो। जब अल्लाह ताला का ये अपने ऊपर कानून लागू कर लेंगे लोग, तो जाहिर सी बात है कि जब तुम अब किसी और की बहन बेटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, तो तुम्हारी भी बहन बेटी को भी अल्लाह ताला के इस बनाए हुए कानून पर अमल करते हुए फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये हमें समझने वाली बात है, समझना चाहिए। अगर हम ये इन बातों पर अमल करते हुए सीधे तरीके से चले ना, तो मुसलमान हमेशा बुलंद तरीन कौम है, मज़हब है। लेकिन हमने जब अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ा है, तो ये आज हम कुत्ते की तरह पिट रहे हैं पूरी दुनिया में। ये वजह यही है, अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़ दिया दुनियावी फ़वाइद के लिए। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर ये इन्हें जिंदा कर दिया गया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। ये वाक़या एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबर का है, जिनका नाम तो नहीं लिया। हाँ, ये है कि अल्लाह ताला ने बताया है कि इनके ऊपर ऐसा हुआ था कि ये हज़ारों की तादाद में थे और ये मौत की वजह से घर से निकल गए थे। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक वबा बीमारी भेजी थी, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको मौत दे दी थी उस वबा में ना। और मौत देने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इनको दोबारा ज़िंदा किया ताकि वो अपनी शान और कुदरत दिखा सके और अपना फजल इनके ऊपर जाहिर कर सके। लेकिन इसमें से कुछ लोग नाशुक्र हो गए। अल्लाह की राह में जिहाद करो, जान लो कि अल्लाह ताला सुनता है, जानता है। जिहाद करना चाहिए, हमें इस्लाम के नाम पर लड़ना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने हर उस मुसलमान के ऊपर जो ताकत रखता है लड़ने की, जो आकिल है, जो बालिग है, जो पैसे भी रखता है और तो जिहाद करने की वो सलाहियत भी रखता है, तो उसे चाहिए कि इस्लाम के नाम पर वो जिहाद करे। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला कह रहा है कि है कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला को कर्ज दे, हालांकि अल्लाह ताला को तो किसी किसी किस्म की कर्ज की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, अपनी फजीलत दिखाने के लिए ये कहा है कि तुम मुझे कर्ज दो तो मैं तुम्हें उसे बढ़ा चढ़ा कर दूंगा। यहाँ पर कर्ज किस तरह से दिया जा सकता है कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करके, और जो तुम्हारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और तुम वो देखते हो कि कहाँ ज़रूरत है उस बंदे को, मुझसे ज़्यादा इस बंदे को ज़रूरत है, तो अपने तुम जमा पूंजी उस शख्स को दे देते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला को कर्ज दिया है और अल्लाह ताला तुम्हें जब तुम्हारा कर्ज लौटा कर देगा तो अच्छा बढ़ा चढ़ा कर देगा। और जितना भी सब कुछ माल है, सब कुछ वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर आना है। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। यहाँ से जो है अल्लाह ताला ने अपने तकरीर का अंदाज़ चेंज कर दिया। यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ है, लेकिन इसमें एक नुक्ता है जो आपको बताता चलूँ कि क्या आपने नहीं देखा, इससे मतलब पिछले जो नशिस्त एक गुजरी थी उसमें भी ये था। तो
बताना ये ज़रूरी है कि आपने नहीं देखा से मतलब ये नहीं है बात कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे, या वो लोग जिनसे अल्लाह ताला मुखातिब है वो लोग मौजूद थे, बल्कि जो किताबत के ज़रिए, जो तौरेत, जो ज़बूर, जो इंजील के ज़रिए इन लोगों तक के इल्म पहुंचा, अल्लाह ताला उस इल्म को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा है कि क्या आपने नहीं देखा, यानी कि या क्या आपको इस बारे में इल्म नहीं, क्योंकि आप ये सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब आपको इस बात का इल्म है। जो इल्म है इसका मतलब क्या आपने नहीं देखा। तो ये नुक्ता इस तरह से है। बाज़ लोगों ने इसका नुक्ता ये जान लिया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो लोग उस वक्त मौजूद थे, ज़ाहिर थे, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौजूदा दौर में ही मौजूद हैं और उसी वक्त ही मौजूद रहे हैं, और जब उनका विसाल हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चले गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और हक बात सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।